Good afternoon, everyone. Today we are starting with our topic that are enzymes. Firstly, I would like to discuss about enzyme structure and catalysis. Enzymes. After the word enzymes in my PDF file, I have highlighted the word Frederick W. Kuhne. I hope it's visible to everyone. Frederick Kuhne was a German physiologist and he is best known for coining the term enzyme. Why I have highlighted Frederick W. Kuhne? Because he is a scientist who coined the term enzymes. Coin means Frederick Kuhne ने term हमको दिया use करने के लिए. Which term? Enzyme. So, enzymes. What are the enzymes? Actually, basically saying, simply saying, enzymes are the things that act just like MSG. Yes, MSG. That is adding taste to your Bikaneri Namkeen and 2-minute Maggie that everyone is fond of. You want to know how? You want to know कि मतलब how is it possible कि कैसे एमएसजी आप लोगों का टेस्ट एनहांस कर रहा है और आप लोगों को वो होता है ना आलू भुजिया बीकानेरी नमकीन उसको खाने में मतलब इतना मजा आता है कि एक पैकेट को एक बार में खत्म कर देता है एक ही बंदा एंड जस्ट लाइक दैट मैगी यू कांट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग मैगी यू कीप ऑन ईटिंग 1 पैकेट 2 पैकेट एंड वन आफ्टर द अनदर और ऐसा भी नहीं लगता कि हाँ पेट भर रहा है और ऐसा भी नहीं लगता कि मन भर रहा है तो उसमें रोल होता है एमएसजी का उसी की तरह हमारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं बट उससे पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू डू यू नो व्हाट इज एमएसजी इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इफ इट्स नॉट देन व्हाई इट इज इन मीडिया सो मच पिछले कुछ सालों में मैगी के बैन एंड ऑल के रिगार्डिंग मीडिया ने एमएसजी को बहुत हाईलाइट किया. Can anyone tell if you know about it? Or should I tell you? So, should I tell you? Yeah. So, I have today's PPT for you. Introduction to enzymes that would be helpful for you in boards, NEET, common entrance tests, GATE exams, and other competitive exams. We have 4 subtitles here. What are enzymes, what is importance of enzymes, monosodium glutamate, and Alzheimer's disease. So this is MSG and Alzheimer's disease presentation I am presenting here. I will let you know कि मैंने Alzheimer disease का जिक्र इसमें साथ में क्यों किया है. But firstly हम लोग MSG पे आए हैं. I would like to tell you about MSG and I hope you can see this picture that I have taken from realpharmacy.com. That is MSG, a silent killer. Why is MSG a silent killer? See, monosodium glutamate is MSG, that is a sodium salt of commonly known amino acid known as glutamic acid. This is glutamic acid, the protonated form of glutamate. This is the structure of glutamic acid that you will need to remember for your exams. This protonated का मतलब है that's a fancy way of saying it has extra hydrogen atoms. See how wonderfully this diagram has been drawn by skepticalraptor.com. ग्लूटामिक एसिड होता है उसके बाद मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है उसमें क्या होता है ग्लूटामिक एसिड के साथ एक सोडियम भी मिल जाता है हमें. दिस सोडियम आयन इज जस्ट लाइक द सोडियम इन टेबल साल्ट. तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी एक तरीके से ग्लूटामिक एसिड जैसा ही हुआ एंड उस वजह से तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज लेट मी टेल यू कि ग्लूटामिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. It is the amino acid that is required for almost 90% functioning of your neurons in the brain. So, why is it problematic? खा रहे हैं अच्छा होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड जैसा ही तो है एक तरह से उसका सोडियम साल्ट ही है बट व्हाई इट इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज लेट मी टेल यू आई हैव शोन यू द स्ट्रक्चर ऑन स्क्रीन.
मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज यूज टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड्स। आपको मैगी अच्छी लगती है, बीकानेरी नमकीन अच्छी लगती है, ऐसे मल्टीपल आइटम्स होते हैं, मल्टीपल सेवरी फूड्स आर देयर जिनके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए एमएसजी ऐड किया जाता है, इसीलिए आपको वो अच्छा लगता है। और इस प्रॉपर्टी को कैसे अचीव करते हैं? हाउ मोनोसोडियम ग्लूटामेट एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड्स, हाउ दिस प्रॉपर्टी इज गिवन टू मोनोसोडियम ग्लूटामेट कि भाई आपको फ्लेवर एनहांस करना है हमारे खाने का। दिस इज डन बाय यूजिंग दीज टू थिंग्स। kelp, you are +1 class students. In your algae chapter you would have studied about kelp. Kelp is an algae that is used to make seaweed broth. seaweed broth algae से कैसे बनता है? kelp से। जो kelp होती है वो seaweed होती है। weeds के बारे में तो you all know. so kelp is a seaweed algae, उसको यूज करके सूप बनाया जाता है उसका, that is known as seaweed broth। और इसको यूज करते हैं टू एनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ एमएसजी, टू गिव it the property of flavoring the foods. So amino acid glutamate is a neurotransmitter in body. आपकी ब्रेन में अमीनो एसिड होता है जो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और बॉडी के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहां पे ग्लूटामेट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो जो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं उनका फंक्शन लिंक्ड होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज के साथ। डिजीज सच एज एल्जाइमर्स, हंटिंगटन्स डिजीज, इनके बारे में आई विल गिव यू अ ब्रीफ। you know need not to study the details about these disease, but I will give you a brief क्यों? because there are questions sometimes in the NEET exam and all जहां पे आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाता है। so ग्लूटामेट को अगर आप लार्ज अमाउंट में खाओगे अपनी डाइट में, तो जैसा कि वो बॉडी में ब्रेन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो आपकी बॉडी को हेल्पफुल होना चाहिए। इट शुड रिजल्ट इन द बॉडी मेकिंग एंड मेटाबोलाइजिंग ग्लूटामेट एफिशिएंटली। लेकिन हो जाता है उसका उल्टा। उल्टा क्या? वो आपको नुकसान करता है। और वो कैसे करता है? क्योंकि जो ग्लू है, ग्लूटामेट है, वो इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन के लिए, लेकिन एमएसजी को बना दिया गया है फ्लेवर एनहांसर। क्योंकि वो आपको बहुत सारा टेस्ट दे रहा है, तो वो आपकी टंग पे जो नर्व्स हैं उनको वो मैसेज देगा कि जाओ जाके ब्रेन से बात करो कि मेरा जो फूड है वो बहुत टेस्टी है और मुझे और खाना है। और ऐसा करके आप उसको और खाओगे। यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग योरसेल्फ, यू कीप ऑन ईटिंग मोर एंड मोर। और उस वजह से क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं वो रैपिड रेट पे डाई करना शुरू हो जाती हैं। योर नर्व्स स्टार्ट डाइंग एट अ रैपिड रेट। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो इस तरह का रिएक्शन ब्रेन में जाता है उसको हम ओवरलाई एबंडेंट एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स रिएक्शन बोलते हैं। और इस तरह के अमीनो एसिड्स को जो एबंडेंट होके एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, उनको फिर ब्रेन एक्साइटोटॉक्सिन्स की तरह, टॉक्सिन समझते हो, जहर, ब्रेन उनको एक्साइटोटॉक्सिन्स की तरह समझने लगती है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। रिसर्च बताती हैं दैट यू मे स्टार्ट डेवलपिंग परमानेंट ब्रेन फॉग। एब्सेंट माइंडेडनेस होने लगता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस, नींद कम आएगी या बहुत ज्यादा आने लगेगी। दीज ऑल थिंग्स constitute permanent brain fog. Let me show how it will create a problem for you. These are the effects of MSG. There is a very beautiful diagram drawn via biorender.com. We have Alzheimer's brain. Amyloid beta plaques are present in this brain. Tau protein gets tangled. I know these things might be little, difficult or unknown to you, tau protein, amyloid plaques, but you will get to know when you will study human physiology. So ये अल्जाइमर्स का ब्रेन इस डायग्राम में दिखाया है। एंड जिस बात की मैंने आपको बात करी कि इतना सारा एमएसजी जो आप खाते जा रहे हो, उस वजह से हो सकता है कि ब्रेन फॉग डेवलप हो जाए एंड इट विल लीड यू टू बैड मेमोरी, एंक्शियस, मूडी, मतलब बहुत मूडी हो जाओगे, एंक्शियस हो जाओगे, एंग्जाइटी होने लगेगी, कंसंट्रेशन कम होगी, आप थिंग्स को फिगर आउट नहीं कर पाओगे। दीज ऑल थिंग्स विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर
you. This is the reason MSG is not good for the health. ऐसा मैंने इसलिए बताया बिकॉज ये बहुत मीडिया में रहा है एंड देयर कैन कम क्वेश्चन इन एग्जाम कि MSG क्या होता है, क्यों आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, कैसे इफेक्ट MSG की को ज्यादा खाने से हो सकते हैं. सो दैट यू कैन कवर ऑल दोज क्वेश्चंस, इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट MSG हियर. And a little about Alzheimer's disease. During my research, I made my notes, and where I have made notes for neurodegenerative disease, in which we have Alzheimer disease. तो Alzheimer disease में क्या होता है, आपकी ब्रेन की प्रीमेच्योर एजिंग होने लगती है. कहने का मतलब ये आपका दिमाग समय से पहले बूढ़ा होने लगता है. यूजुअली मिड अडल्ट लाइफ में होने लगेगा, 50-60s की एज में भी हो सकता है. प्रोग्रेस रैपिडली, मतलब आपको मेंटल पावर्स का लॉस होने लगेगा. जैसे कि ओल्ड एज में होता है ना कि लोग भूलने लगते हैं, डिप्रेस्ड मेमोरी हो जाती है, याद नहीं रहता है. दैट विल हैपन इफ यू विल डेवलप Alzheimer disease due to the things. So be aware, don't eat so much of MSG, it will create a problem for you. ऐसे क्लिनिकल फीचर्स उसके रहते हैं. और पता है क्या होता है, जब आप किसी डिजीज के बारे में पढ़ते हो ना, कोई भी डिजीज उठा के देख लेना, तो व्हाट हैपेंस इज आपको ऐसे लगने लगता है कि यार ये डिजीज मेरे को तो नहीं है. जब आप उसका सिम्टम पढ़ते हो, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. सो यू नीड नॉट टू वरी, ये आपके साथ नहीं है. बट आपको MSG खाना कम करना चाहिए. You should not eat too much of Maggi. Yeah, like you can eat it for like once or twice in a month. So maybe then it will prove some beneficial for your brain, for good health of your brain. And this is ऐसा सब कुछ होता है. So ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करना चाहिए, आपको पता चले. Then we are done for this topic here about MSG, and now we have to move on to enzymes. So I hope it's clear for you कि MSG मैंने क्यों बताया, कैसे important है. और अब जो enzymes हैं, वो एंजाइम्स आपकी बॉडी में MSG की तरह काम करते हैं. MSG की तरह काम करने का मतलब ये है कि जैसे MSG आपके खाने के टेस्ट को एनहांस करता है ना, वैसे ही एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं. जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर के साथ क्लोराइड मिल रहा है, तो प्लेटिनम कैटलिस्ट पे अगर हम उस केमिकल रिएक्शन को रन करते हैं तो उस वजह से उसका रेट एनहांस हो जाता है. तो दीज आर द थिंग्स जो एंजाइम का काम है, वो चीजों के रेट को, मतलब रेट ऑफ अचीविंग द केमिकल रिएक्शन जो आप करना चाहते हो, उसको वो इंक्रीज करता है, एनहांस करता है. उसके बाद यू हैव definition of enzyme, that is, it is a biocatalyst of molecular weight ranging from 12,000 to more than 1 million that increases the rate of reaction without itself being changed in the overall process. enzyme पूरा का पूरा ऐसे ही रहता है पूरे रिएक्शन में, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है अपनी प्रेजेंस की वजह से. एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है फ्रॉम 12,000 टू मोर देन 1 मिलियन. इसकी प्रॉपर्टीज, देयर आर रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स सच एज मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. उनके अंदर रिमार्केबल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं. क्या समझते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर? पावर लाइक अ सुपरमैन, पावर लाइक अ स्पाइडरमैन, उड़ सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, होता है ना उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जो किसी ऑर्डिनरी मैन में नहीं होता, आप में या मुझ में नहीं होता. हो सकता है वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन दिखते तो है ना कि उनके अंदर पावर्स है जो हमारे अंदर नहीं है. जस्ट लाइक दैट जो एंजाइम्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटालिटिक पावर होती हैं, जो कि किसी और के अंदर, जैसे कि जो सिंथेटिक या इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट बनते हैं, उनके अंदर नहीं होती हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट्स. जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम को काम करना है, जैसे कि
AgCl के केस में Ag है और क्लोरीन है, वो सबस्ट्रेट्स हैं, उनके ऊपर एंजाइम को काम करना है, तो उसके लिए एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम को पता होता है कि मुझे किसके ऊपर काम करना है। जैसे जो आप मैग्नेट चुंबक यूज करते हो आयरन ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं ना, उनको पता है ना कि वो सिर्फ आयरन ऑब्जेक्ट्स को ही चिपकाने के काम आएंगे, सॉरी उसके ऊपर चिपकने के काम आएंगे। मैग्नेट को आप लकड़ी पे नहीं चिपका सकते, प्लास्टिक पे नहीं चिपका सकते। जस्ट लाइक दैट एंजाइम को भी पता है कि उसको किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना है, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। या जैसे कैट होती है, वो बहुत हाईली स्पेसिफिक होती है रैट के लिए। एक चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ के जाती है, हाथी के पीछे तो नहीं दौड़ती, क्योंकि उसको पता है कि उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है, और उसको जो अचीव करना है वो उसके लिए सेट है। जस्ट लाइक दैट एंजाइम सेट होते हैं कि उनको किस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके काम करना है। थर्ड प्रॉपर्टी इज दे एग्जिबिट एनॉर्मस कैटालिटिक पावर। बहुत ज्यादा कैटालिटिक पावर होती है एंजाइम्स में। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, इसकी डिटेलिंग मैं अपकमिंग स्लाइड या क्लासेस में करूंगी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और एंजाइम उसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं। लेकिन हाँ, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। कैसे? एकदम वैसे ही जैसे आप जब कोई बोरिंग मूवी देखते हो तो आप लेस एक्टिव हो जाते हो और आपकी सोने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसी तरीके से जब एंजाइम एक्ट करता है तो वह एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज करने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। आफ्टर दैट यू हैव another point, that is it changes only the rate at which equilibrium is achieved and has no effect on position of equilibrium। आपके केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा वो सिर्फ उस रेट को चेंज करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव जब आप करोगे ना उस पोजीशन को वो चेंज नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, एमएसजी के बारे में हमने बात करी, वो आपको क्या हेल्प कर रहा है, एक लेज का पैकेट खत्म करने के लिए, और आपका पेट जल्दी से भर जाए जल्दी जल्दी खा के, उसको उसके लिए वो काम कर रहा है एमएसजी। मतलब आपकी टमी तो वैसे भी फुल होने वाली थी एक पैकेट से, लेकिन एमएसजी ने उसमें फ्लेवर डाल दिया जिस वजह से आपने उस पैकेट को जल्दी जल्दी खा लिया और आपकी टमी जल्दी भर गई। तो दिस इज अ वे जिस हिसाब से एंजाइम भी एक्ट करते हैं। वो आपका पेट उसी टाइम भरेगा, जो इक्विलिब्रियम है वो उसी टाइम अचीव होगा, लेकिन उसके रेट को इंक्रीज कर देगा एंजाइम, जैसे कि आपने फास्टर रेट से लेज को खा लिया, लाइक दैट। उसके बाद है कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं। ऑपरेट करने का मतलब है कि रिएक्शन को एंजाइम्स कैसे कैटालाइज करते हैं। सबस्ट्रेट है, ये डायग्राम मैंने बनाया है, आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, ओके, इट हैज नॉट बीन टेकन फ्रॉम एनी अदर सोर्स। सो अ सिंपल एंजाइमेटिक रिएक्शन को आप कैसे डिपेक्ट कर सकते हो। आपके पास एक सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम है, एंजाइम जाके सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके बाद जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैच हो जाएगा, और उसके बाद सबस्ट्रेट वहां से निकल जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दिस इज नोन एज लॉक एंड की मॉडल। मैंने कल एनसीईआरटी के आपको चैप्टर्स आई हैव शोन यू, योर +1 एनसीईआरटी कंटेन द टॉपिक ऑफ एंजाइम्स इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर। वहां पे यू विल फाइंड about lock and key model. Also in chemistry books you will find about lock and key model. This is lock and key model। देखो एकदम लॉक और की की तरह वो आपस में जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। Under biologically relevant conditions, uncatalyzed reactions tend to be slow. Most biological molecules are quite stable in neutral pH, mild temperature, aqueous environment inside cells. Thus, the enzymatic catalysis of reaction is essential to living system.
इस स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी जो बायोलॉजिकली रिलेवेंट अच्छी कंडीशंस होती हैं, बायोलॉजिकली कहने का मतलब है पीएच, टेम्परेचर, वो सब जो कंडीशंस होती हैं उनमें जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं ना, वो यूजुअली स्लो होते हैं, क्योंकि जो मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रल पीएच पे, माइल्ड टेम्परेचर पे और सेल्स के अंदर के एक्वस एनवायरनमेंट में स्टेबल रहते हैं। इसीलिए जो एंजाइमेटिक कैटालिसिस है रिएक्शन का, वो लिविंग सिस्टम्स के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस तो ऐसी सिचुएशन में स्लो रह जाते हैं। तो रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए वी नीड एंजाइमेटिक कैटालिसिस ऑफ रिएक्शंस। I think it's 1:30 now and I should stop here because it will be too much for today. In next upcoming session, we will be having more about enzymes. It will take like, I think, 4 to 5 classes or videos. Now I have a surprise for you that I will be taking in every day's class, and that is feature of the day. आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेज याद करने रहते हैं दैट कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उन सबको याद करना एक साथ डिफिकल्ट होता है। सो आई हैव ट्राइड टू कॉर्पोरेट समथिंग अबाउट टुडे इन माय एवरी क्लास, जिसमें मैंने आज की क्लास में स्लाइड डाला है फॉर फीचर ऑफ द डे, दैट इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे आज के दिन यानी 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है टू एजुकेट कम्युनिटीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव HIV वैक्सीन रिसर्च and to mark the effort of frontline workers that they have found the safe and effective AIDS medicine. So this is to keep a note in your notebook कि today 18th May we are having World AIDS Vaccine Day.